Good morning, children. In the previous video, you have seen about the allotropes of phosphorus. Phosphorus exists in the form of three allotropes: white phosphorus, red phosphorus, and black phosphorus. So you have seen that white phosphorus is prepared by heating calcium phosphate with silica and coke in electric arc furnace because it requires very high temperature, 1773 Kelvin. If you see the structure of white phosphorus, then it has tetrahedral structure and it exists in tetraatomic form, but the phosphorus bond angle is very small. It is 60 degree. So here is very high angle strain because if you see that each phosphorus exhibits sp3 hybridization, but the bond angle is not 109 degree 28 minute, but it is 60 degree only. So you can imagine how much strain is there. This white phosphorus is soft and soapy to touch and it is highly poisonous. जो पर्सन इसके कांटेक्ट में आते हैं उनके जॉज जो होते हैं माउथ में वो गलने लगते हैं. इसको फॉसीजा बोला जाता है डिजीज को, फॉसीजा. Due to angle strain, white phosphorus is very reactive. It reacts with air even at room temperature, and in dark it glows when it reacts with air to form phosphorus pentoxide. This phenomenon is called chemiluminescence, that is glowing of white phosphorus in air in dark, and this is also called phosphorescence. It is insoluble in water but soluble in organic solvent like alcohol and CH2 etc. ये reaction important reaction है where white phosphorus reacts with NaOH aqueous solution on heating in the atmosphere of carbon dioxide in absence of air. तो ये फास्फीन बना देता है PH3 और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट NaH2PO2 बनाता है. वाइट फास्फोरस इज स्टोर्ड अंडर वाटर. इसका कारण ये है कि ये जो वाइट फास्फोरस है ये एयर से रिएक्ट हो जाता है इवन एट रूम टेम्परेचर. सो दैट्स व्हाई इट इज केप्ट अंडर वाटर सो दैट इट रिमेन अवे फ्रॉम द रीच ऑफ एयर. Now, if you see other allotropes of phosphorus, then next one is red phosphorus. So red phosphorus is obtained when white phosphorus is heated at 573 Kelvin in the atmosphere of carbon dioxide or coal gas. It forms red phosphorus. So now what happens on heating? If you see, then in white phosphorus you have seen that this tetraatomic form. So this bond opens actually, and or this bond is open. One of the intermediate bond is open. जो बीच में बांड बन रहे हैं ये ओपन हो जाएगा. तो अगर ये बांड ओपन होगा तो इधर और इधर बैलेंसेस क्रिएट हो जाएंगे, तो एक चेन स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्म हो जाएगा. सो दिस रेड फास्फोरस हैज पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर. इट इज हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड. इट इज नॉन पॉइजनस and it's stable at room temperature. On heating it sublimes. It does not react with NaOH, so this reaction can be used to distinguish between white phosphorus and red phosphorus. White phosphorus react with NaOH to form phosphine, but red phosphorus does not react. Black phosphorus exists in two forms: alpha black and beta black phosphorus. Red phosphorus, when heated at 803 Kelvin in sealed tube, it forms alpha black phosphorus, and when white phosphorus is heated at 473 Kelvin temperature at 4000 to 12,000 atmospheric pressure, it forms beta black phosphorus. So these are the two forms in black phosphorus, but the black phosphorus has layered structure. तो इसका मतलब black phosphorus में जो ये बांड है ये भी ओपन हो जाएगा, ये बांड भी ओपन हो जाएगा. सो दिस एक्वायर्स दिस लेयर्ड स्ट्रक्चर जस्ट लाइक ग्रेफाइट. तो इसीलिए दिस लाइक ग्रेफाइट इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट हैज ब्लैक लस्टर. और यहाँ पर बांड एंगल भी आप देख रहे हैं क्या हो जा रहा है,
बढ़ जा रहा है, 60 डिग्री से 99 डिग्री आ जा रहा है। तो चूंकि यहाँ पर एंगल स्ट्रेन कम हो गया, सो दिस इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ फास्फोरस, ये ध्यान रहे। Now compounds of phosphorus, first phosphorus halides. So first we will take phosphorus trichloride. Preparation, this is obtained by heating white phosphorus with thionyl chloride. It gives PCl3, SO2 and sulfur monochloride as a product. So you can take the video, you can take the screenshot of this one, this page. Okay, now coming to another method. In lab, the PCl3 can be prepared by the reaction of white phosphorus with dry chlorine gas. This reaction. Now, if you see the structure of PCl3, तो ये भी पिरामिडल है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है ये कम है थोड़ा, जो बॉन्ड एंगल अमोनिया में है उससे कम है। उसका कारण है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो होता क्या है कि शेयर्ड पेयर जो बॉन्ड पेयर है इट मूव्स टुवर्ड्स क्लोरीन एटम एज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम से दूर जाएंगे तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम हो जाएगा, जबकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है, तो बॉन्ड एंगल इसीलिए यहाँ कम हो जाता है। इट इज कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि वाई PCl3 फ्यूम्स इन एयर, तो आप ये लिखेंगे कि इट फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर ड्यू टू इट्स हाइड्रोलिसिस। PCl3 ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स H3PO3 एंड साथ में HCl बनता है गैसियस फॉर्म में। तो यही HCl आता है जिसके कारण वहां पर फ्यूम्स आती हैं और आई इरिटेटिंग होता है। रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप। ये आपने हाइलोएल्केन में देखा था कि ऐसे सभी कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप होता है लाइक एल्कोहल और एसिड, ये PCl3 से रिएक्शन करके हाइलोएल्केन और एसिड क्लोराइड बनाते हैं, साथ में फास्फोरस एसिड भी बनता है। तो यहाँ पर सिंपली OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl और कुछ नहीं, लाइक दिस OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl. Now coming to phosphorus pentachloride, so it is obtained first by heating white phosphorus with dry chlorine gas like this, and second by heating white phosphorus with sulfuryl chloride SO2Cl2, sulfuryl chloride. So we get phosphorus pentachloride and SO2. This solid is obtained. Now PCl5 possesses two टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ये कई बार पूछा जाता है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन PCl5। तो PCl5 बाय यूजिंग द बेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, यहाँ पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, 5 पेयर्स हैं तो 5 ऑर्बिटल होने चाहिए, एक s 3 p और एक d। सो जो ज्योमेट्री होगी इसकी ट्राइगोनल और बाइपिरामिडल, जहाँ पर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ये हैं 120 डिग्री पर, जिसकी बॉन्ड लेंथ 202 पिकोमीटर है, जबकि एक्सियल बॉन्ड्स आर इलोंगेटेड, ये 240 पिकोमीटर का है। एक्सियल बॉन्ड इसलिए इलोंगेट हो जाते हैं क्योंकि ये जो तीनों एक प्लेन में हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के क्लोरीन एटम, ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं ये एबव और बिलो जो बॉन्ड पेयर्स हैं इनको रिपेल करते हैं। तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये बॉन्ड्स आउटवर्डली प्रोट्रूड होंगे, जिससे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी और ये बॉन्ड वीकर हो जाते हैं। एक्सियल बॉन्ड्स आर वीकर बॉन्ड। एक तो ये हुआ। दूसरा ये जवाब होता है कि व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, तो यहाँ पर कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड। तो जब PCl5 गैसियस स्टेट में होता है तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन जब PCl5 सॉलिड फॉर्म में होता है तो ये आयनिक करेक्टर एक्वायर कर लेता है। दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टेट्रावैलेंट this cation and hexavalent, that is octahedral anion. This is only possible due to presence of d orbital in phosphorus. It acquires ionic character in solid state. Reaction with moist air, ये भी moist air में फ्यूम करता है। आप देखें तो PCl5 में जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं जो कि वीकर होते हैं वो पहले ब्रेक हो जाते हैं, तो PCl3 और 2Cl बन जाता है। तो ये जो 2 Cl हैं ये एक्चुअली हाइड्रोजन से रिएक्ट होंगे बिकॉज क्लोरीन हैज वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, तो 2HCl बन गया POCl3 और POCl3 फिर हाइड्रोलाइज हो गया
और फास्फोरिक एसिड बना देता है और HCl गैस की फ्यूम्स आती हैं। PCl5 also reacts with the compounds containing OH group। ये OH ग्रुप के कंपाउंड से रिएक्ट करता है, लेकिन रिएक्शन में प्रोडक्ट अलग होंगे। देखिए PCl5 पहले ब्रेक होगा, PCl3 और 2Cl बनाएगा। तो ये जो 2 Cl बन रहे हैं ये एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। एक R से कंबाइन होगा RCl, दूसरा H से HCl। एंड एज वी नो कि जो PCl3 बना इट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, तो POCl3 भी बन जाएगा। सिमिलरली हियर RCOCl, HCl and POCl3, this is formed. Now coming to the oxo acids of phosphorus, तो बच्चों oxo acids means the acids which contain oxygen, they are prepared by dissolving the phosphorus oxides in water। तो फास्फोरस ऑक्सो एसिड एक्चुअली कई टाइप्स है, बट इसमें दो मेन टाइप हैं, दो सीरीज हैं। एक है आर्थोफास्फोरस एसिड जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और दूसरा आर्थोफास्फोरिक एसिड इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5। नाउ आर्थोफास्फोरस एसिड शोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हीटिंग पर ये फास्फोरिक एसिड और PH3 बनाता है, +5 और -3, यहाँ पर ये +3 है। अगर आप फास्फोरस ऑक्सी एसिड्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर को जैसा हम जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट से निकाला जाता है। तो जैसे मान लीजिए आप H3PO3 का स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फास्फोरस सेंट्रल एटम है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन बाइवैलेंट है, इसका लेना नहीं है, तो 5 3 8 इलेक्ट्रॉन, 2 से डिवाइड करिए 4, इसका मतलब 4 पेयर्स हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो पहले 4 बांड बना दीजिए, 1 2 3 4, और फिर एक पाई बांड बना दीजिए। सारे फास्फोरस ऑक्सी एसिड में कम से कम एक p डबल बांड हो जरूर होता है। अब बाकी जो सिग्मा बांड बने, पहले ऑक्सीजन जोड़िए, और ऑक्सीजन अगर खत्म हो जाए तो रिमेनिंग में हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए। जो ऑक्सीजन है, जो हाइड्रोजन बचे हुए हैं, वो ऑक्सीजन से जोड़ दीजिए। तो ध्यान रहे कि फास्फोरस के अराउंड पहले आप टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल बना दीजिए, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले आप ऑक्सीजन जोड़िएगा, तो 3 ऑक्सीजन है, तीनों को जोड़ दीजिए। फिर आप एक p डबल बॉन्ड O बना दीजिएगा। अब जितने हाइड्रोजन है उनको जोड़ दीजिए, तो एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो इस तरह से स्ट्रक्चर आप ड्रा कर सकते हैं। सारे फास्फोरस ऑक्सी एसिड्स में एक एटलीस्ट 1 p डबल बॉन्ड O होगा, कम से कम एक POH ग्रुप होगा, और जो अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स है वो टेट्राहेड्रल होगा। ऐसे हाइड्रोजन जो डायरेक्टली P से लिंक्ड होंगे वो एसिडिक करेक्टर में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बट ये रिड्यूसिंग करेक्टर उसको प्रोवाइड करते हैं। तो जो बेसिसिटी आती है, जितने OH ग्रुप होंगे जब वाटर में रखा जाएगा, तो ये चूंकि हाईली पोलर है, ये बांड हाईली पोलर हैं, तो ये ब्रेक हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएगा वाटर में, तो ये 2H+ देगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 है। यहाँ 3 OH हैं तो ये 3 देगा। सिमिलरली जो फास्फोरिक एसिड है, इसका स्ट्रक्चर ये है, आपने इसके पहले देखा। अब आप ये फास्फोरस एसिड है, अगर इससे एक ऑक्सीजन निकाल दीजिए तो ये हाइपोफास्फोरस, हाइपो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जा रहा है। यहाँ पर कितना है +3 और यहाँ पर +1 हो जाता है ऑक्सीजन निकलने पर, तो ये हो गया हाइपोफास्फोरस, मतलब लेस ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। हाइपोफास्फोरस एसिड का सबसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, टेट्राहेड्रल ही होगा, एक p डबल बॉन्ड होगा, एटलीस्ट एक POH होगा और रिमेनिंग हाइड्रोजन होंगे। तो इसमें जो फास्फोरस है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और ये दोनों pH बॉन्ड रिड्यूसिंग करेक्टर को कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका कारण ये है कि फास्फोरस +1 में है, और हम जानते हैं कि फास्फोरस के केस में +3 और +5 ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये इनमें चेंज होना चाहता है। तो जब ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, +3 में दैट इज फास्फोरस एसिड, +5 में दैट इज फास्फोरिक एसिड, होता यह है कि यही जो pH बॉन्ड है ये POH बॉन्ड में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो जब ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो ये जो दूसरी स्पीसीज है उसको रिड्यूस करेगा। ये रिड्यूसिंग रिएक्शन नीचे दिया गया है कि इट रिड्यूसेस सिल्वर आयन टू सिल्वर, AgNO3 में सिल्वर आयन है और ये रिड्यूस होकर सिल्वर एटम बना देता है।
So this reaction 4AgNO3 plus H3PO2 hypophosphorus acid, a good reducing agent in presence of water, gives 4Ag plus H3PO4 और 4HNO3. बच्चों मेटा टर्म यूज होता है. मेटा फास्फोरिक एसिड, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इट्स स्ट्रक्चर. HPO3 ये तब मिलता है जब आर्थोफास्फोरिक एसिड एक वाटर यूज करता है. तब इस एक मॉलिक्यूल से जब एक वाटर निकलता है तो उसको मेटा बोलते हैं, HPO3. HPO3 दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. एक साइक्लिक ट्राइमर फॉर्म है HPO3 होल थ्राइस. कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ H3P3O9. तो एक्चुअली H3P3O9 ये HPO3 का ट्राइमर है. इसका स्ट्रक्चर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें POP बॉन्ड होता है. फिर हर फास्फोरस पर एक एटलीस्ट 1 P डबल बॉन्ड हो, एक POH, P डबल बॉन्ड हो, POH, P डबल बॉन्ड हो, POH. सारे फास्फोरस ऑक्सी एसिड में ये आपको जरूर मिलेगा. P डबल बॉन्ड हो और POH ये सब में होता है. और दूसरे जो ग्रुप्स का अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल होता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे. दूसरा है पॉलीमेरिक चेन फॉर्म जिसमें POP लिंकेज है, लेकिन ये साइक्लिक नहीं होगा, ओपेंड होगा. हर फास्फोरस पर एक P डबल बॉन्ड हो, एक OH ग्रुप होगा. तो ये है मेटाफास्फोरिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रक्चर. एक और यहाँ टॉप पर लिखा हुआ पायरोफास्फोरिक एसिड. पायरोफास्फोरिक एसिड का मतलब ये होता है कि जब हम फास्फोरिक एसिड को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो 2 मोल्स एक वाटर लूज करता है. यहां पर देख रहे हैं 2 मोल है और दोनों के बीच में एक वाटर लूज हो गया, OHH मतलब H2O लूज हो गया. तो ये फास्फोरस इस ऑक्सीजन के थ्रू इस फास्फोरस से जुड़ गया, फास्फोरस थ्रू ऑक्सीजन इस फास्फोरस से जुड़ गया. बाकी सब पर P डबल बॉन्ड होगा और OH ग्रुप लगे होंगे. तो इसकी जो बेसिसिटी है वो 4 हो जाएगी क्योंकि इसमें 4 OH ग्रुप हैं. तो जब इसको वाटर में रखेंगे तो ये 4H प्लस देगा. तो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर्स को जरूर ड्रा करके सीखेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.